components of oops. Components of oops. Components of oops. पहला components है class. First component is class. And second component is method. पहला है क्लास, दूसरा है मेथड, तीसरा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स और चौथा है क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट. सबसे पहले लिखिए क्लास के बारे में. व्हाट इज अ क्लास? सर लास्ट वाला बोलना है एक बार. सबसे पहले था क्लास, दूसरा था मेथड, तीसरा था एट्रीब्यूट, चौथा था ऑब्जेक्ट. क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट. क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट. तो लिखिए क्लास के बारे में. Class is the blueprint and prototype. Class is a blueprint and prototype. क्लास की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. Class is a blueprint and prototype. Class is a blueprint and prototype. We can declare all data members and member function. Class is a blueprint and prototype. Class is a blueprint and prototype. We can declare all data members and member function. Class is a blueprint and prototype. We can declare all data member and member function. We can declare all data member and member function inside in a class. Inside in a class. Class is a blueprint and prototype. We can declare all data member and member function inside in a class. क्लास के बाद लिखो मेथड. क्लास के बाद मेथड.
Method is a member of your class. Method is a member of your class. Method is a member of your class. Method is a member of your class, which is declared inside in a class, which is declared inside in a class. Inside in a class, methods are useful. Methods are useful to perform a logics. Methods are useful to perform a logics, operations, conditions. Methods are useful to perform a logics, operations, conditions in your code. Sir, logic Methods- operation and Methods are useful to perform a logics, conditions, operations in your code. मेथड, लॉजिक, ऑपरेशन, कंडीशन कुछ भी लगाता है उप्स के अंदर, ठीक है, मेथड का ही काम होता है। एट्रीब्यूट लिखो, एट्रीब्यूट इज ए attribute is a member of your class. Attribute is a member of your class. Attribute is also called class variable. Attribute is also called class variable. Attribute is also called class variable. हो गया? Attribute is also called क्लास वेरिएबल, ठीक है। पता, जैसे नॉर्मल वेरिएबलों को वेरिएबल कहते थे ना, बस उसमें वेरिएबल को ही, जो वेरिएबल होते थे ना, उन्हीं को ही एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब वैसे तो हम इन्हें वेरिएबल ही कहते हैं, परंतु उप्स कॉन्सेप्ट होने के कारण आपको इनको वेरिएबल नहीं बोला जाता, एट्रीब्यूट बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और वैसे तो हम फंक्शन को, मेथड को फंक्शन बोलते हैं, तो इससे पहले तो हम इस चीज को, मेथड को फंक्शन बोलते आए, परंतु उप्स कॉन्सेप्ट होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया? मेथड बोल दिया गया। तो समझ में आ रहा मेरी बात? मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम वही है, पीछे वाला ही। वेरिएबल को एट्रीब्यूट बोल ले, फंक्शन को मेथड बोल ले, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को मिला के हमारा एक उप्स कॉन्सेप्ट बन रहा है। समझ में आपको मेरी बात? तो इस तरह से, तो एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल एंड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन, ठीक है ना। बस सुनो, अभी आगे बताऊंगा मैं। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में और लिखो।
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, object is a mem objects are useful, objects are useful to allocate a dynamic memory of your class. Objects are useful to allocate dynamic memory of your class. Objects are useful to allocate dynamic memory of your class. Point number 1. Object is a current instance of your class. Object is a current instance of your class. Object is a current instance of your class. ठीक है? Next. Object is a real world entity of your class. Object is a real entity of your class. क्लास की एक आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी ऑफ योर क्लास. Object is a real identity of your class. ठीक है, चलिए देखिए. अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसकी कोडिंग ही कर रहे हो, तो जिस प्रोग्रामिंग में 4 चीजें नहीं होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगी. मतलब जहां भी आप कोडिंग करोगे वहां पे एक तो क्लास, एक मेथड, एक एट्रीब्यूट, एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा. मतलब बेस है, सिंटेक्स है. समझ में आपको? तो अगर ये जहां आपको ये सारी चीजें मिल गई तो आप खुद समझ जाना कि प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. समझ में आया आपको मेरी बात? हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. अगर जहां ये चीज मिल गई, ठीक है. चलिए, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि उप्स प्रोग्रामिंग आने से आपकी प्रोग्रामिंग सिक्योर हो गई. सबसे बड़ी चीज मतलब आपकी प्रोग्रामिंग की सिक्योरिटी बढ़ गई. उस उप्स प्रोवाइड सिक्योर प्रोग्रामिंग कहा था ना मैंने. उप्स प्रोवाइड सिक्योर प्रोग्रामिंग एज कंपेयर फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ग्लोबल प्रोग्रामिंग होती है. सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ध्यान से सुनना. पता, जब मैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहा था तो उस फंक्शन के बनते ही उस फंक्शन को कोई भी कॉल कर सकता था, क्योंकि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल प्रोग्रामिंग. मतलब किसी को फंक्शन का पता होना चाहिए. यू कैन कॉल एनीवेयर. क्या ऐसा तो नहीं था वहां पे एक्सेस देना पड़ रहा था. फंक्शन बना, कोई भी कॉल कर लो. इसलिए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ग्लोबल प्रोग्रामिंग बोल रहा था मैं. पर अब क्या है? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दिक्कत है. उसमें एक्सेस दिया जाता है. सुना होगा आपने, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, है ना. एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करूंगा ना, तो मेरे पास उसमें एक चीज होगी कि मैं अपने कोड को प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कुछ भी कर सकता हूं. मतलब मेरे बस की बात है, मैं एक्सेस देना चाहता हूं, मैं अपने कोड को एक्सेस दे सकता हूं. किसी को नहीं दिखाना कोड तो मैं सारा कोड प्राइवेट कर दूंगा. मान के चलो सारा कोड मुझे दिखाना तो मैं पब्लिक कर दूंगा. मान के चलो मुझे वो कोड उन पर्सनों को दिखाना जो मेरे बहुत क्लोज है तो प्रोटेक्टेड कर दूंगा. मतलब मेरे हाथ में है ना डोर, किसको क्या दिखाना है, किसको क्या नहीं दिखाना. उसी चीज को हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं. और वही चीज उप्स ने प्रोवाइड की थी. ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही मेरी? वही चीज उप्स ने मुझे क्या दी है? यस सर. और वही चीज उप्स ने प्रोवाइड करने से मेरी कोडिंग क्या हो गई? सिक्योर हो गई. ठीक है, रुको भाई, बैटरी.
देखो भाई, सबसे पहले उप्स की सबसे बड़ी पहचान, उप्स की सबसे बड़ी पहचान, कोई भी कोड बिना क्लास के नहीं बनेगा, ना बने, बिल्कुल नहीं बने, कोई भी कोड बिना क्लास के नहीं बनेगा। उप्स की सबसे बड़ी पहचान है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम दिया जाता था वैसे अक्सर यहाँ पे क्लास का नाम दिया जाता है। जैसे हम क्लास का नाम देते थे जैसे हम वेरिएबल का नाम देते थे, प्रोग्राम का नाम देते थे, वैसे हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 10 कर दी, ठीक है, और y की वैल्यू 20 कर दी। अब इनको हम वेरिएबल नहीं क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। इनको हम वेरिएबल नहीं क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वैसे तो देखने में फंक्शन लग रहा परंतु नहीं, यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, मेथड। क्या बोलेंगे, और क्या करेंगे, z इज इक्वल टू सेल्फ, इसमें एक मेथड, क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई, प्रिंटर चड चड, एंड फंक्शन का ऑब्जेक्ट 1 एंड k डॉट सेल्फ को कीवर्ड होता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये मैंने 2 नंबर के एडिशन का कोड किया जो मैं तुम्हें सन 86 से कराता आया हूं। सबसे पहले पाइथन की प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में यहीं से करी थी ना, 2 नंबर के एडिशन से। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ भी 2 नंबर का एडिशन, फंक्शन में भी 2 नंबर का एडिशन, और अब तुमने यहाँ उप्स में भी 2 नंबर एडिशन कर दिया, तो क्या दिक्कत है, क्या है, क्या बीमारी है? देखो मैं आपको बता दूं, पैटर्न समझो। जब मैंने नॉर्मली 2 नंबर का एडिशन करा था तो उस कोड को कॉल नहीं कर सकते थे, उस कोड को कहीं और जगह कॉल नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने वो एडिशन किसके अंदर डाल दिया, फंक्शन के अंदर डाल दिया, जिससे वो कोड क्या हो गया, कहीं भी रीयूजेबल हो गया। फंक्शन में क्या दिक्कत आई कि हम उस कोड को प्राइवेट नहीं कर सकते थे, तो अब हमने इस कोड को फंक्शन इस उप्स में डाल दिया, तो अब ये कोड क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर हुआ? जब शुरू में मैंने 2 नंबर का एडिशन पेला था, ठीक है ना, तो उसमें वो कोड कहीं भी कॉल नहीं हो सकता था, सिर्फ वहीं रन होता। तो मैंने कहा इसे रीयूजेबल करो, तो मैंने उस कोड को उठा के फंक्शन में रख दिया, तो फंक्शन आर यूजफुल टू रीयूजेबल ऑफ योर कोड। फिर फंक्शन में क्या, फंक्शन ग्लोबल प्रोग्रामिंग है, वो कहीं भी कॉल हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा तो एक काम करो, अब इसे ग्लोबल तो वो क्या नाम है, रीयूजेबल तो हो ही गया, तो अब इसको प्रोटेक्शन भी दे दो, समझ में आपको, अब इसको जो है सिक्योर भी दे दो। तो अब हमने इसमें क्या कर दिया, उप्स के अंदर रख दिया, क्योंकि उप्स हमें एक चीज प्रोवाइड करता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देता है। तो अब हमारा कोड, ये जो सो नाम का मेथड दिख रहा है, ये कोड सिस्टम क्या है, सिक्योर है। और दूसरी बात, अब ये सो नाम का मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल नहीं, रेफरेंस बेस बन गया हो। यस सर। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ, सुना। फंक्शन और उप्स में क्या अंतर है, मतलब रियल वर्ड से समझोगे तुम।
एक गाय गाय, ठीक है ना, एग्जाम्पल बढ़िया होते हैं, उससे समझ जाते हो आप, ठीक है। एक गाय है, अब क्या हुआ, वो गाय सोसाइटी में ऐसी घूम रही है, ध्यान से सुनना। तो कोई भी पर्सन, सोसाइटी का कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से उस गाय को कुछ भी खिला दे, कोई यही नहीं कहता भाई तू गाय को क्या खिला रहा है यार, बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगी। जिसकी जो मर्जी पन्नी में खिला दे, घास फूस अट्टा वट्टा कुछ भी खिला दे, कोई उसे नू नहीं कहने का, कोई तुम्हें नू नहीं कहने का भाई तू इसको क्यों खिला रहा, खिला दे, तेरा ही पाप तेरा ही वो, ठीक है। तो वो तो हो गया फंक्शन, मतलब फंक्शन एक ऐसी चीज है, वो बन गया, उसे कोई भी कॉल कर सकता है, कोई ये भी नहीं पूछने का तुमसे कि तुम क्यों क्यों कॉल कर रहे हो, तुम्हें एक्सेस दिया नहीं दिया, नहीं किया, तुम्हारे पास ये डेटा आ रहा नहीं आ रहा, नहीं, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है। समझ में आपको? अब यार उस गाय को एक भला मानस आ रहा था, ठीक है, उसने देखा यार पब्लिक इस गाय को ना पता नहीं अनाप शनाप खाए, इसकी जान चली जाएगी, पंच वंच कुछ भी खवा दे, ठीक है ना। तो उस बंदे ने क्या कर दिया, उस बंदे ने उसको पकड़ के अपनी फैमिली का मेंबर बना लिया, घर जाके बांध दी खुंटे से। आया समझ में आपको? अब ये फंक्शन उठ के कहां चला गया, किसी पर्सन के भले मानस के घर, ठीक। तो अब वो गाय किसका मेंबर बन गई, उस मतलब उस पर्सन का फैमिली मेंबर बन गई ना वो। अब खवा के दिखाना तुम उसे, अब नहीं खिलाओगे। अब आप उस पर्सन से पूछ के जाओगे, पूछोगे भैया ऐसे गाय को रोटी खिलानी है, अगर तुम पंडित हो ना तो भी लोई खिलाने जाओगे तो कहोगे भाई ये 4-5 लोई है, इसमें घी लगा हुआ, थोड़ा सा हल्दी लगी हुई, पूजा है, खिला दूं क्या? वो वेरीफाई करेगा, दिखा, हाँ तो खिला दे भाई। और अगर तुम गलत खिलाया तो तुम्हें घर जाकर तोड़ देगा जाके। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पे गाय को फंक्शन कह रहा हूं। तो अब गाय जो उठ के कहां चली गई, उप्स में चली गई, समझ में आपको? तो मतलब अब आप उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, समझ में आपको? उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब इस 100 नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए जिस जिस क्लास का वो मेंबर है, ये वन जो है ना, वन, ये वो पर्सन है जो उसे गाय को घर ले गया है। मतलब अब ये 100 नाम का फंक्शन कॉल करने के लिए इस पर्सन से पूछना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा, समझ में आपको? हाँ, रेफरेंस। तो अगर आप इस 100 नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा ये ना, चाहे कितना ही कर देना, जब तक ये जिसका ये 100 नाम का मेथड है, जो जिसका मेंबर है वो परमिशन नहीं देगा, और वो परमिशन देगा अपने ऑब्जेक्ट के हक से, जिसे रेफरेंस कहते हैं। पता है समझ में आपको मेरी बात? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है ग्लोबल और प्राइवेट का, मतलब सिक्योरिटी का, ठीक है ना। तो इस टाइम यहाँ पे 100 नाम का फंक्शन जिस टाइम सिक्योर है, अब जब भी कोई पर्सन इसको कॉल करेगा तो कोई भी कोडर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, रेफरेंस देगा और कहेगा इससे कॉल कर, और जो भी देगा उसी से कॉल होगा, अदरवाइज उस अदर कोई और रेफरेंस से कॉल होगा नहीं। समझ में आपको? तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस किस चीज को कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट को कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं? तो यहाँ पे ये तो होगी क्लास, ये तो होगी क्लास, और ये होगा क्या, एट्रीब्यूट्स, और ये क्या हो गया, मेथड। और अब क्या रह गया वापस, हार्ट के डॉट सो एंड कॉलिंग। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, बिना तो डायरेक्ट तो कॉल नहीं हो रहा ना 100 नाम का मेथड, किसी का मेंबर है वो, उससे परमिशन लेनी पड़ रही है, और ये इस क्लास का रेफरेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, KPST कुछ भी। अब यही पर्सन इस क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं कॉल करेगा। दिस इज अ कॉलिंग ऑफ मेथड।
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझाने की आपको क्यों कोशिश कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ाने के लिए क्यों तैयार कर रहा हूँ। समझ में आपको इससे पहले की कोडिंग में क्या दिक्कत थी और यहाँ क्या दिक्कत, यहाँ क्या मतलब फल फूट रहे, ठीक है ना। आउटपुट वही दो नंबर का एडिशन आएगा, परंतु ये उससे ज्यादा बेटर कोडिंग है जो उससे पहले 2 नंबर की एडिशन करी थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ और क्या ना। अब मैं तुझे कह रहा हूँ कि भाई तू मेरे साथ हरिद्वार चल, तो तू कहेगा ना पापा से पूछूंगा पहले, नहीं तो तेरा पप्पू मुझे नहा के तेल तक हरिद्वार लेके तू गया, भाई तो कौन था तू, है ना। हाँ ये है ना कॉलिंग के डॉट शो, ये रहा ना। मिल जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तेरा मतलब ऐसा कर देना, चल क्यों नहीं रहा, आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे बताना तो वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हमारी वैल्यू है। हाँ हाँ 1 के अंदर ही तो है, इसलिए 1 का रेफरेंस बनाना पड़ रहा है। हाँ अब तुम मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो उस टाइम, तो बाहर कोई पर्सन कोई भी बाहर से आएगा कहने का मुझे सौरभ से मिलना है, तो पहले मैं परमिशन दूंगा ना, सौरभ कौन है मेरी क्लास में कैसे जा सकता है। सेल्फ बाद में बताऊंगा, सेल्फ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अरे मूवी का सस्पेंस है ये, तो ऐसा विलन निकल गया होगा तो सारी मूवी में तो यही बचा पड़ा। अब मैं तुझे अभी बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना घड़ी। टॉपिक है इसके ऊपर पूरा 2 दिन का टॉपिक है। हाँ 2 दिन का टॉपिक है। जावा में दिस कीवर्ड, पाइथन में सेल्फ कीवर्ड। सुना तुमने जावा में दिस कीवर्ड? बीटेक वाले होंगे। जावा में दिस कीवर्ड, पाइथन में सेल्फ कीवर्ड, दोनों एक काम करते हैं। इतनी छोटी चीज थोड़ी है, जब तो नुकाह बाद में कराऊंगा, अभी करा दिया तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। बेस बनेगा, इंस्टेंस विस्टेंस कंस्ट्रक्टर जब तुम सब पढ़ लोगे, जब जाकर सेल्फ पता लगेगा हाँ कहानी कहाँ चल रही है। एक कहावत बताऊंगा मैं तो। एक गांव में चला गया तू, चला गया, अरे सुन, एक गांव में चला गया, एक दोस्त लेगा तुझे, चल भाई मेरे दो गांव में चल भाई तेरा गांव घूम का। वो 2-3 दिन तुझे अपनी फैमिली में रखता, तो तू एकदम से पता कर लेगा उसके पापा किस नेचर के हैं। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो तू एकदम से पता थोड़ी कर लेगा सेल्फ क्या है। अब इसमें घुलेगा मिलेगा जब बताऊंगा तुम्हें इसके पापा कैसे नेचर के, ठीक है ना। हाँ सेल्फ को समझ, एक फैमिली में कुछ आदमी खूबियां भी तो हो जिन्हें समझने के लिए 15-10 दिन लग जा। कुछ आदमी बहुत खुले सिस्से के रहे हैं, जो एक बार पहली मीटिंग में समझ जा भाई बंदा कैसा है। अरे यार मैं तो सारी बात सही कहूं। हाँ? कुछ बंदे ऐसे होवे जो देखने में कुछ और लगा, 15 दिन बाद 20 दिन बाद पता लगा है कौन है, विलन है या हीरो है। वही है सेल्फ, एकदम से नहीं बता सकता मैं से। जब बतम्मा पूरा खोल के बतम्मा, हाँ भाई एक दिन में तो एक महीने में एक दिन तो क्लास कराया तुम, करा दिया इसमें क्या रहा है। अपने पापा को बुला कर लाइए जब बतम्मा में एक दिन क्लास कराया बस, ये पूरे दिन में केस और थारा बताओ, जब केस से डर लगा भाई मुझे। अगला तो केस बता रहा, केस का मैटर पहले सोल्व कर का। देख ये सर्च वाली फाइल चल रही बेटा, करंट फाइल कर,
और फिर रन करते हैं यहाँ पे, देख आ गया आउटपुट। आगे बढ़ो। ऑनलाइन वाले ऐसे बैठे जैसे ऑनलाइन क्लास है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं करते तो। यस सर, बढ़ो आगे। हाँ बिल्कुल, यो तो यूजर है क्लास के बाहर, बिल्कुल। यहाँ कॉल कर, चाहे तो दूसरी फाइल में कॉल कर। ओ सुनो, तुम एक गलती कर देते हो, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे यहाँ कॉल करते हो या यहाँ कॉल, बिल्कुल बाहर करना कॉल, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बाहर मिलाना। हाँ बाहर करना बिल्कुल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही भाई मेरी आपको? हाँ जी सर। यस सर। घर वर का काम वाम करके शाम को 6 बजे देख के रिकॉर्डिंग नहीं आती ना। अरे नहीं, बहुत लोग पर्सनों के पास जो है ना अपना ही वो है वीएलसी प्लेयर, रिकॉर्डिंग वाला। एक स्टूडेंट नु कह रहा, मैं ना, एक स्टूडेंट पता क्या कह रहा, शाम को सर मैं दूध देने जाऊं, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गया। दूध का काम करता होगा, डेयरी फेरी का। सर तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गया, मेरे दूध का टाइम हो गया। तो बताओ क्या करे, कह रहा सर मैं एक काम कर दूं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, और बस ऐसी लॉक मोड करके, अब पता नहीं कैसे लॉक वॉक करके जावे, मगर डिस्प्ले बंद नहीं होती, नहीं लॉक मोड करके चला जाऊं, है ना। और बस उसे मोबाइल को बंद करके, मतलब उसका सेफ जगह धर के, कहीं जो कोई डिस्टर्ब ना करे, और चला जाऊं। आके देखूं तो रिकॉर्डिंग मिले है तुम्हारी। अम्मा का फिर कल लगा, फिर मैं 8-9 बजे जब फ्री होकर खाना वाना खा के तब पढ़ लूं। मैं पढ़े कैसे, कहना घेर में चला जाऊं, घेर, हाँ घेर में चला जाऊं, बस वहीं खाट घेरूं और लोटा पढ़ूं। मगर तो पढ़ लिया, तो तू तो ऐसा देख रहा जैसा मूवी देख रहा। अब नु कह रहा लौट के देखो क्लास तुम्हारी। लैपटॉप लेके बैठे बालक, नोटपैड लेके बैठे, हाथ के हाथ कर रहे, तब नहीं हो रहा। तो बहुत बढ़िया भाई, नोट के देख के। तो ये रिकॉर्डिंग वाला सीन बताया मैंने, ये रिकॉर्डिंग वाला सीन ऐसा है बालक, रिकॉर्डिंग ही रह जा। और उसमें भी वो, जब वो इतनी बात बता रहा, तो वो इतनी बात में कहीं कहीं जगह बोर भी हो जाता होगा, तो मुझे लगा वो 10 मिनट में पूरी क्लास देख लेता होगा मेरी। उप्स, रिकॉर्डिंग ऐसी हो, लिखो। तो ये एक उप्स का सिंटेक्स था कि आपको पूरी प्रोग्रामिंग शुरू से आखिरी तक कहां किस जोन में करनी है। याद रखना, उप्स के अंदर कोई भी कोडिंग क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट के बगैर नहीं होनी। और कहां ऑब्जेक्ट, कहां एट्रीब्यूट, कहां वेरिएबल और कहां क्लास बनेगी, बिल्कुल फिक्स जगह रहेगी शुरू से आगे तक। ऐसे नहीं वेरिएबल नीचे आ जाओ, मेथड ऊपर पहुंच जाओ, ऑब्जेक्ट इसके खोपड़ी पे पहुंच जाओ, ऐसा कुछ नहीं। जहां है वहीं रहेगी, सेंटर यही रहेगा, सिंटेक्स है। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन और मेथड में क्या अंतर है? फंक्शन और मेथड में सीधी सी सुन लेना, फंक्शन इज ए ग्लोबल प्रोग्रामिंग एंड मेथड इज ए प्राइवेट प्रोग्रामिंग। दूसरी बात, जो फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो जाए उसे फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो या किसी क्लास का मेंबर कहलाए वो मेथड कहलाता है। समझा आपको मेरी बात? हाँ, मेथड सुन रहे हो ना? जो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी क्लास का मेंबर बन जाए उसे फंक्शन नहीं, मेथड बोलेंगे। और जो फंक्शन डायरेक्ट कॉल होता हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई रेफरेंस ना हो, ग्लोबली हो, उसे हम फंक्शन कहेंगे। समझ में आपको ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर।
ये देखो भाई, बात ना करो, देखो फंक्शन एंड मेथड दे आर एसोसिएट, देखो दे आर एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट और क्लास while they both contain block of design perform the specific task they are using. Here a function is a block of code perform the specific task and can return value xyz. And method, the method function is tied to class or object. It can the operate on the object data axis, data class other field. समझ में आपको मेरी बात? जो मेथड क्लास के अंदर हो, ऑब्जेक्ट से ट्रीट होता हो, ऑब्जेक्ट से कॉल होता हो, उसे हम मेथड कहते हैं। और जो फंक्शन डायरेक्ट कॉल होता हो, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए होता हो, ग्लोबली कॉल होता हो, कोई उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, वो आपका फंक्शन होता है। ध्यान रखना इस चीज का, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तुम फंक्शन को ही मेथड और मेथड को ही फंक्शन बोलते आए हो, है ना? फंक्शन ही तो मेथड है, मेथड ही तो फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आपको मेरी बात? तो चलिए अब आप यहाँ पे उप्स कोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास उप्स के कंपोनेंट्स तो हो गए, मतलब सिंटैक्स तो रेडी हो गया। अब उप्स की प्रोग्रामिंग करने के लिए और उप्स की प्रोग्रामिंग में मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए, जैसे मैंने बोला, उसके लिए हमारे पास फीचर्स ऑफ उप्स होते हैं। क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ उप्स होते हैं। मतलब देख सुनिए, ये कंपोनेंट्स ऑफ उप्स ने हमें ये बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें होंगी एज ए सिंटैक्स। परंतु कंपोनेंट्स उप्स के बाद एक होता है फीचर्स ऑफ उप्स, जो हमें ये सिखाएगा कि हम अपनी कोडिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, प्रेजेंटेबल, सिक्योर कैसे बनाएंगे, और उन्हें कहते हैं फीचर्स ऑफ उप्स। और एक चीज ध्यान रखना, एक पाइथन की प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में उप्स कॉन्सेप्ट को जो एक्सपेंसिव बनाया है, मतलब उप्स कॉन्सेप्ट की जो एक रेटिंग बढ़ी है, या उप्स कॉन्सेप्ट को एक वरीयता दी गई है, इंपोर्टेंस दी गई है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो फीचर्स ऑफ उप्स के कारण दी गई है। समझ आपको? जिस बच्चे को उप्स के फीचर्स आ गए बढ़िया से, तो उसकी प्रोग्रामिंग इतने ही उप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बढ़िया उप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, उतने ही आप डेवलपिंग और डेवलपर की तरफ अग्रसर हो गए हो। समझ में आपको? उप्स कॉन्सेप्ट की खास बात यही है कि घास काट दोगे तो घास काट दोगे तो घास का इंजीनियर बनोगे। समझ में आपको? और अच्छे से कर लोगे तो आपको फिर आगे तक मॉड्यूल्स, फंक्शन, मेथड पढ़ने में और क्लास बनाने में और खुद के मॉडल बनाने में, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आपको मेरी बात? जितने भी मैंने आपसे बताया था कि डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैबलू, जितने भी ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरी बन रहे हैं, उनके पीछे एक ऑब्जेक्ट जरूर कॉल हो रहा है। बिना ऑब्जेक्ट के तो कोई फंक्शन ही कॉल नहीं होता। बिना ऑब्जेक्ट, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज पढ़ा रहा था मैं, लिस्ट। क्या पढ़ा रहा था? ये लिस्ट पढ़ा रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये लिस्ट पढ़ा रहा था, ठीक है? तो मैं इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा था लिस्ट का। ये के ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, सुन रहे हो ना? और लिस्ट क्या है? एक क्लास है, बताया ना? लिस्ट एक क्लास है और लिस्ट का ऑब्जेक्ट कौन है? के है। और फिर उस क्लास के अंदर कितने मेथड प्रोवाइड किए गए, वो ऐसे पता लग रहा। सुन रहे हो ना मेरी बात? समझ में आया? अब आप ये कैसे कहोगे कि ये मेथड है, फंक्शन है? भाई मेथड दिख रहा है, सब में सेल्फ लग रहा है। तुमने एक चीज देखी नहीं, जब मैंने खुद की क्लास बनाई तो सेल्फ नाम का मेथड अपने आप आता है। अगर कोई भी मेथड क्लास के अंदर होगा तो बिना सेल्फ के तो होगा ही नहीं। ये देखो, आ रहा है ना मेरी बात? तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो, सुन रहे हो? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैं टपल लिस्ट कुछ भी पढ़ा रहा था, है ना, डिक्शनरी कुछ भी पढ़ा रहा था, ये जैसे लिस्ट है 4 5 10, ठीक है, के डॉट, ये देखिए, समझ में आपको मेरी बात? सारे के सारे मेथड सेल्फ के द्वारा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर ये सारे मेथड रखे गए, और मैं किससे कॉल कर रहा? के से। और के एक ऑब्जेक्ट है। आपको भी पता है क्लास के अंदर रखे गए मेथड तब तक कॉल नहीं होते जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ के क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका है? लिस्ट का। लिस्ट क्या है? क्लास है। ये मेथड क्या? उस लिस्ट बैकएंड में लिस्ट क्लास के अंदर रखे गए मेथड जिनको मैं कॉल कर रहा हूं। मैं आपको नहीं है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी मेथड, या कोई भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, एक्सेल, जो भी है, उनके पीछे एक उप्स दौड़ रहा है। अगर कोई बना के दे रहा है तो ऑब्जेक्ट से, और कोई अगर किसी से बनवा रहे तो भी ऑब्जेक्ट से। अगर तुम मुझसे कहते हो कि मेरे लिए एक मॉड्यूल बना दो, तो भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बनाऊंगा। और अगर तुम्हें किसी
प्रोग्रामिंग में कोई चीज बनी बनाई मिल रही है तो भी ऑब्जेक्ट से बन रही है ना, आपको बिना ऑब्जेक्ट के तो डेवलपिंग नहीं। ये ऑब्जेक्ट है ना, अरे बैकएंड में क्लास बन रही है ना, यही तो समझा रहा, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा हल्का रख। ये जो मैंने आपसे बोला कि मैं उप्स कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है बेटा, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर पाइथन में कोई भी इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट लाइब्रेरी, इनबिल्ट प्रोसेस जो भी कर रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बैकएंड में जिसने मुझे पाइथन दी है उसके बैकएंड में लाइब्रेरी बना के दी है, और वो लाइब्रेरी उप्स कॉन्सेप्ट में क्लास में बना के दी है, और मैं एक यूजर हूं जिसका सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर के मेथड कॉल कर रहा हूं, राइट। और अगर कोई तुमसे कहे नहीं मेरे खुद की लाइब्रेरी बनाओ, तो फिर मैं खुद की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर मेथड बनाऊंगा और फिर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दूंगा। समझ में आ नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ, कॉन्सेप्ट समझा करो। ऑनलाइन वालों हेलो, यस क्या सर। सबसे बड़ा प्रूफ दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सारे के सारे मेथड दिख नहीं रहे आपको? सेल्फ लगा हुआ तो ये किसी क्लास के अंदर है, और इसके अंदर सबके आगे मेथड लगा हुआ है। अगर फंक्शन होता तो ऐसे होता, देख ऐसा है। जय बाबा, ऐसा फंक्शन देख, एफ 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 लग रहा होगा, ये फंक्शन ओरिएंटेड है। समझ में आया? तो जिसने ये लाइब्रेरी बना रखी तो फंक्शन में बना रखी, और वो बना रखी लिस्ट अपन तो क्लास में बना रखी। और अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा जैसे बना। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें कस्टम उप्स पढ़ा रहा हूं। अब मैं तुम्हें अपनी बनानी सिखाऊंगा ताकि तुम किसी यूजर को दे दे। आया समझ में आपको? क्लियर हुआ? उप्स कॉन्सेप्ट तो ऐसा है, उप्स कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जैसे सब्जी में आलू कटेगा, यही। कोई भी पढ़ दो, कोई भी आईटी सेक्टर में कोई भी फील्ड में चले जाओ, डेवऑप्स, पेवऑप्स, एसक्यूएल, पैसक्यूएल, जहां पे भी जाना चाहो आएगा उप्स ही, कहीं ना कहीं उप्स का ही कनेक्शन होगा। जब प्रोग्रामिंग का जन्म हो रहा था तो उप्स ने ही, मतलब ये विष्णु है भाई, समझ में आपको? ये चीज है, शक्ति उन्हीं की रहेगी, महादेव, ये त्रिमूर्ति है, ये तीनों है। फिर ये देवता वेवता तो भगे फिर रहे, परंतु सब कंट्रोल इनके हाथ में ही है। ये चीज है। तो ये तीनों शक्ति है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, सुन रहे हो ना? ये तीनों ही रचेता है। इनसे पूछो क्या होगा, तुम कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, डेवऑप्स पढ़ लो, लाइनक्स पढ़ लो, ठीक है ना? आईटी सेक्टर की बता रहा हूँ, बैकएंड में होगा नहीं तो फ्रंट पे होगा। अगर इनबिल्ट मिल रहा होगा तो बैकएंड में किसने यूज किया होगा, ऑब्जेक्ट बना के तुम कॉल कर रहे हो मेथड, है ना? नहीं तो तुमसे कोई कह रहा है तो तुम फिर डेवलप करके दे रहे हो तो फिर उप्स यूज कर रहे हो। तो भैया उप्स का तो मेन पर्पस है भाई, ठीक है? चलिए तो ठीक है, बस भाई आज के लिए इतना, ठीक है? ठीक है जी। ओके सर। हेलो 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 कोई सुन ही ना रहे। हेलो हाँ भाई बोलो। भाई, कल जो सर ने पढ़ाया था किसी के पास फोटो है वो? अच्छा, डेकोरेटर सर ने पढ़ाया था कल। हाँ, कल की क्लास छूट गई थी, तो कल का जो सर ने पढ़ाया था फोटो है किसी पे? फोटो कोडिंग जो के लैपटॉप पे हाँ कोडिंग हाँ, की मतलब थी वो कोडिंग है। कोडिंग जो भी करवाई हो, जो भी करवाया हाँ होगा, करा हो रहा तुमने। हम्म। हाँ, तो फोटो भेज दो रे उसका, ग्रुप में? ग्रुप में भेज दो या फिर मुझे पर्सनली भेज दो। ठीक है, पर्सनली भेज देता हूँ। हाँ, तो मेरा क्लास नंबर पे टेस्ट अमिताज, मेरा नंबर वो अमिताज पुली वो हो रहा है, लास्ट डिजिट है 6316। क्या है? मेरे मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट है 6316। 6316।
हाँ 6316 ठीक है उस पे भेज देना। सैनिटल पर कराया था ना, कोडिंग वोडिंग जो करी हो रही वो तो भेज देना। ठीक है, SQL खत्म होने के बाद भेज। एसक्यूएल लेते हो? और हम्म। एसक्यूएल भी जो तो कल करवाया था लिखा हुआ है नहीं, हाँ, वो भी भेज देना कल वाला। ये तुम मैसेज कर दो मेरे व्हाट्सएप पे। और तुम्हारा नंबर भी तो नहीं पता ना कौन सा है, नंबर लिख लो। नंबर बताओ। लिखो 82 हाँ बोल। 82 35 35 80 80 53 53 39 39। भेज दो, मुझे मैं भेज व्हाट्सएप दूंगा। हाँ भेज देना, कल वाली क्लास भेज देना, एसक्यूएल भी और पाइथन ठीक है, वाली भी जो कराया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई।